So hello everybody, today in this video we are going to discuss a very important topic, that is law of diminishing marginal utility. In the previous video we have been talking about isoproduct curve and lots of various stuffs, but in this video law of diminishing marginal utility is the basic, you can say basic point. You can say that it is a basic topic of this economic subject because it's very important and it holds a large amount of marks in the examinations. So in this video we will discuss about law of diminishing marginal utility. Here we will discuss about definitions, the various diagrams, reasons for diminishing marginal utility, and the definitions according to various professors which are renowned. So in this video we will discuss about the various facts too. So let's start this video without wasting a single point of time. First of all, there is a definitions of law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility is given by the various economists, but we are taking here that two important renowned economists, that is Professor Marshall and Professor Holding. They have given the definition in a very brief way, and very important this definition is being, since the law of diminishing marginal utility comes in the examinations. So first of all, I am going to tell you what is the law of diminishing marginal utility is also known as. So law of diminishing marginal utility is also known as Gauss's first law, and the second is law of satiety. Law of satiety, Satiety, and Gauss's first law, Gaussens first law. So these two are the various names for law of diminishing marginal utility. You can also call Gauss's first law and law of satiety to it. So now I'm going to read about the definitions given by according to Professor Marshall. You can just pen down the definitions. Definition is the additional benefit which a person derives from a given increase of a stock of a thing diminishes other things being equal with every increase in the stock that he already has. So the additional benefit which a person derives from a given increase of a stock, जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है, क्यों? अगर कोई स्टॉक अगर आप बढ़ाते हैं उसके वजह से अगर आपको कोई अच्छी एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल, यू कैन से एडिशनल प्रॉफिट इज बीन गेन बाय यू, सो दैट एडिशनल थिंग्स ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस अदर थिंग्स, तो वो किसी चीज़ को रिप्लेस करके किसी चीज़ को कम करके आपको मिल रहा है. सो विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़. So this is the basic definition for law of diminishing marginal utility. Next comes according to Professor Holding. He says as a consumer increases the consumptions, जैसे जैसे consumer अपना consumptions बढ़ाता है of any one commodity, keeping constant of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually declines. जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कंजम्पशंस बढ़ाता है किसी भी एक कमोडिटी का, दूसरे कमोडिटीज़ को कांस्टेंट रखे, कीपिंग कांस्टेंट ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज़, दूसरे कमोडिटीज़ के कंजम्पशंस को कांस्टेंट रखते हैं. अगर वो किसी एक कमोडिटी के कंजम्पशंस को बढ़ाता है तो जो मार्जिन यूटिलिटी रहेगी उस कमोडिटी की और वेरिएबल कमोडिटी, मतलब दोनों कमोडिटी की जो मार्जिन यूटिलिटी रहेगी वो इवेंचुअली कम हो जाएगी, घट जाएगी. So these two other definitions are very much important as far as the law of diminishing marginal utility is been concerned. So next comes reasons for diminishing marginal utility. What are the reasons which is given by Mr. Professor Holding due to which the marginal utility is diminishing marginal utility? First is commodities are imperfect substitute. So listen, commodities are imperfect substitute. There are not the availability of 100% substitutes. किसी भी एक प्रोडक्ट की 100% सब्सिट्यूट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है. सो इन दैट केस, इन सच केस, कंज्यूमर यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स इन अ प्रॉपर रेशियो, राइट. अगर किसी चीज़ की 100% सब्सिट्यूट्स नहीं मिलेंगे तो एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के प्रॉपर रेशियो में उसका कंजम्पशंस करेगा. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वॉन्ट्स. मीन्स लिसन, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड वॉन्ट्स, वी ऑल नो दैट. आपकी भी होगी, मेरी भी है कि हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, जो असीमित इच्छाएं हैं. सो आउट ऑफ द अनलिमिटेड वॉन्ट्स दैट पर्सन कैन एबल टू फुलफिल जस्ट वन वॉन्ट. मीन्स अगर आपके पास असीमित इच्छाएं हैं तो उन असीमित इच्छाओं से एक पर्सन
दैट पर्सन कैन एबल टू फुलफिल जस्ट वन बॉन्ड। वो सिर्फ असीमित एक 100 में से केवल एक ही बॉन्ड को वो पूरा कर पाता है। क्यों? क्योंकि इट्स कंजम्पशंस कैपेसिटी आर नॉट अनलिमिटेड, क्योंकि उसकी जो उपभोग करने की जो क्षमता है, कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है, वो अनलिमिटेड नहीं है। बॉन्ड्स भले अनलिमिटेड है, लेकिन उन बॉन्ड्स को पूरा करने की जो क्षमता, उस ग्रहण करने की जो क्षमता है, कंजम्पशंस कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। मतलब कि अ सिंगल टाइम कम्स, एक समय ऐसा आएगा जब उसकी यूटिलिटी जो होगी वो पूरी हो चुकी होगी। तो जब यूटिलिटी पूरी हो चुकी है, सो द यूटिलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लिमिटेड, तो उसका उपभोग करने की क्षमता लिमिटेड मानी जाएगी। अगर यूटिलिटी ही कंप्लीट हो गई और आपकी वांट्स ज़्यादा हैं लेकिन यूटिलिटी कंप्लीट हो गई है आपकी, तो आपकी इंडिविजुअल की जो यूटिलाइजेशन की जो क्षमता है वो भी सीमित है, लिमिटेड है। तो इट कैन बी सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू हिज और हर कंडीशंस। ये सारी नीड्स जो रहेंगी, ये सभी नीड्स जो रहेंगी वो उस कंडीशंस पे आके सेटिस्फाई करेंगी। So it can be satisfied according to his or her conditions. So these two are the reasons for diminishing marginal utility. First is commodities are imperfect substitutes, and second is stability of particular bonds. Next comes law of diminishing marginal utility. Okay. Law of diminishing marginal utility means it states that the marginal utility of an additional unit of a commodity goes on diminishing with its continuous use. It is written that diminished with its continuous use. Law of diminishing marginal utility states that the marginal utility of an additional unit, marginal utility की diminishing हमें ये बताती है कि जो एक एक्स्ट्रा गुड्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हो, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो उस गुड्स के रेगुलर यूज़ करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। अगर हम एक दूसरे शब्दों में इसको समझना चाहें, इन अदर वर्ड्स में समझना चाहें, द मोर वी हैव अ थिंग, जितना ज़्यादा हमारे पास चीज़ रहेगी उतनी कम हमारी वांट रहेगी एडिशनल इंक्रीमेंट के लिए। द मोर वी हैव अ थिंग द लेस वी वांट एडिशनल इंक्रीमेंट इन इट। तो इसी तरीके से दिस लॉ एज्यूम्स कंज्यूमर इज रैशनल बीइंग। ये लॉ जो है वो कंज्यूमर को एक रैशनल मान के चलता है। हमने पहले ही आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स में ही आपको बताया था कि कंज्यूमर इज अ रैशनल। तो ये जो लॉ है ये कंज्यूमर को रैशनल मान के चलता है। कमोडिटी कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कमोडिटी जो कंजम्पशंस कर रहा है वो नॉर्मल होके कर रहा है, किसी भी तरीके की उसके ऊपर कोई मतलब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हमको इतना करना ही है, वो नॉर्मल है, मतलब रैशनल है। उसके चेंज में अगर कोई फैशन नहीं हो रहा है, उसके फैशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब अगर हम देखें कि ये जो टेबल है यहाँ पे, इस टेबल में हमें क्या आता है? इस टेबल में हमें ये पता चल रहा है, एक तरफ यहाँ पे लिखा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और एक तरफ लिखा है इससे मिलने वाली हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम वी फाइंड हियर दैट द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ एक्स गुड। अगर मान लीजिए ये कोई गुड्स है जिसका नाम है एक्स कमोडिटी, तो जैसे जैसे वो एक एक कंजम्पशंस अपने बढ़ाता जा रहा है, as he is increasing the consumption of X good, its marginal utility is going to decrease। जैसे एक यूनिट यहाँ पे था, एक यूनिट जब उसने बढ़ाया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसे प्राप्त हुई 6। फिर जब वो दूसरी यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो 6 से घट के 4 हो गई। फिर तीसरी पे जब कंज्यूम किया तो 6 से घट के 4 से घट के 2 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर एक समय आया कि वो निगेटिव में चली गई। तो वो मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। ऐसा क्यों? इट इज़ देयर फॉर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोस अ नेगेटिव स्लोप। ऐसा होने से हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखें तो चूंकि ये हमेशा कम होती जा रही है, धीरे धीरे करके एक जगह माइनस हो गई, 0 के बाद ये माइनस में चली गई, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व रहेगा वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव स्लोप की ओर रहेगा, नीचे की ओर झुका हुआ रहेगा, मतलब कि एक्स एक्सिस के भी वो नीचे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि परफेक्ट टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस टेबल से अगर हम समझना चाहें तो जैसे क्वांटिटी ऑफ ब्रेड है, एक कंज्यूम किया तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी उसे 20 मिली, 20 इंटू 1 कर दिया तो टोटल यूटिलिटी उसे 20 मिल गई। इसी तरीके से जब वो 2 क्वांटिटी ऑफ ब्रेड यूज़ किया तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 25, और 25 के बाद टोटल यूटिलिटी हमें इसके ऐसे पता चलेगा 20 + 25 कर दिया तो 45 आ गया। फिर यहाँ पे भी तीसरी क्वांटिटी जब यूज़ करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसे 15 मिल रही है। अब 15 मिल रही तो यहाँ पे ये टोटल इसको ऐड कर 45 में ये 15 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 60 आ गई।
इसी तरीके से जब हम 75 तक पहुंच रहे हैं, 75 तक पहुंचने पे हमको यहाँ पे पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी का प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव हमको यहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी हमको यहाँ पे मिल रही है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी हमको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम सिक्स्थ कमोडिटी पे आते हैं, अब सिक्स कमोडिटी पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिक्स कमोडिटी में हमें ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी का मिल रहा है, ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉइंट का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जैसे यहाँ पे 75 है, यहाँ भी 75 है, तो टोटल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है वो दोनों जगह सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी हमको यहाँ पे मिल जा रही है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे होमोजीनियस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। 7th 8th जब वो क्वांटिटी ऑफ ब्रेड कंज्यूम कर रहा है तो उसको यहाँ पे अब इच्छा पूरी हो गई है लेकिन फिर भी कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे माइनस में चली गई है, जो कि -5 और -10 हो रही है और 70 to 60 हो जा रही है, घटती चली जा रही है, घट गई क्योंकि यहाँ पे देखा 20 45 60 70 75 यहाँ तक बढ़ा, लेकिन यहाँ से फिर कम होने लगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी की कंडीशंस यहाँ पे बन जा रही हैं। तो ये था हमारा एक परफेक्ट टेबल के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसी टेबल को इस ग्राफ पे अगर समझना चाहें तो ग्राफ में भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब वो एक कमोडिटी को यूज़ कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 आ रहा है। 2 पे यहाँ पे क्या है, 2 पे एक जगह यहाँ पे 25 है और यहाँ पे क्या है 45, तो यहाँ पे 45 पे मार्क कर दीजिए। यहाँ पे 15 है, यहाँ 60 है, यहाँ पे 15 मार्क कर दीजिए, यहाँ 60 मार्क कर दीजिए। यहाँ 10 है, 10 मार्क कर दिया। यहाँ 70 है, 70 मार्क कर दिया। फिर 5 है, 75 है, फिर यहाँ पे 5 मार्क कर दिया, 75 मार्क कर दिया। फिर यहाँ 0 है, यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे ये 75 हो गया। फिर -5 है, नीचे चला गया, यहाँ पे ये -5 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 70 है, 70 हो गया। -10 की जगह -10 यहाँ पे नीचे हो गया, यहाँ पे इसका 60 हो गया। फिर हम जितने भी यहाँ पे जो हमने सर्कल्स यहाँ पे बनाए हैं, अगर हम उन सर्कल्स को एक परफेक्ट लाइन के द्वारा ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हिस्सा जो रहेगा ये हमारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी का कर्व। TU कर्व का मतलब यहाँ पे हो गया टोटल यूटिलिटी कर्व। और यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट होगा, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट जो पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिला है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऑफ ब्रेड जो है वो एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं यूटिलिटी। ये यूटिलिटी को हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेड्स को शो कर रहे हैं। तो जैसे ही हमको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 6 पे हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी, हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की मार्जिनल यूटिलिटी हमको यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गया है और हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक, तो इसको कर सकते हैं कि यही हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ सैटिटी है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसके नीचे भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MU कर्व यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे MU कर्व आ गया है। MU कर्व का मतलब हो गया ये नीचे वाला, ये वाला जो कर्व है, ये जो नीचे ऐसे गया है ये वाला, इसको हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व और इसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी का कर्व। तो ये था इसका पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन विद इट्स टेबल कि आप मार्जिनल यूटिलिटी को किस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में समझा सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम एज यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट कम्स इट इज़ बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है, इन मान्यताओं को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सही बात है, होमोजीनियस होनी चाहिए, तभी आप मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड द प्राइस शुड बी प्रॉपर एंड एक्यूरेट। प्रॉपर होना चाहिए यूनिट्स ऑफ प्राइस और कमोडिटी का। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन टाइम्स एंड प्लेस इन कंजम्पशन। डिफरेंस इन टाइम एंड प्लेस इन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी किसी भी गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, किसी भी गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसके समय और उसके स्थान पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो रहेगा वो सही से काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इच्छाएं एक समय पे एक तरीके की नहीं होती, इच्छाएं बदलती रहती हैं। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। वैल्यू ऑफ कमोडिटी मतलब कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द मेंटल मेकअप ऑफ द कंज्यूमर। मेंटल मेकअप पे भी चीज़ होना चाहिए कि आज हम ये गुड यूज़ कर रहे हैं और कल चलो हम ये वाला गुड्स यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके मेंटल मेकअप चीज़ नहीं होना चाहिए, उसका मेंटल मेकअप एक ही गुड्स या एक ही कमोडिटी की ओर आकर्षित होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इनकम, फैशन, इंटरेस्ट, हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर शुड बी कॉन्स्टेंट। एक कंज्यूमर का इनकम, फैशन, उसका इंटरेस्ट, इच्छाएँ, उसकी हैबिट, उसकी बिहेवियर किसी एक गुड्स के प्रति हमेशा सामान्य रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए।
अन्यथा की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी को पता करना मुश्किल हो जाता है। फिर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी रिमेन कांस्टेंट। जो कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी आप निकाल रहे हैं उससे कई तरीके के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में उपलब्ध होंगे, तो उन सब्स्टिट्यूट से जो मिलने उन सब्स्टिट्यूट की जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कमोडिटी, वो भी वही रहनी चाहिए, उसकी कॉस्ट भी वही रहनी चाहिए जो कि उस गुड्स की कॉस्ट है जो कि वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो किसी भी प्रकार से एक ही गुड्स की कॉस्ट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कुछ एक्सेप्शंस, इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? तो इसमें पहला है वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मीन्स व्हेन द साइज ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट स्टैंडर्ड देन दिस लॉ डजंट अप्लाई। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो साइज़ रहेगा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड एक जो सामान्य साइज है अगर वो नहीं रहेगा तो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेंट गुड्स। इंटॉक्सिकेंट गुड्स का मतलब होता है मतलब ऐसी गुड्स जो कि आपकी बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेटजी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग गेट्स एबनॉर्मल। किसी भी मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का जो मेंटल की जो स्थिति है वो अगर एबनॉर्मल हो जाती है तो इसको हम कर सकते हैं इंटॉक्सिकेंट गुड्स। सो देन ही विल टेक आउटपुट इन इंक्रीजिंग द ऑर्डर नॉट इन डिक्रीजिंग वे। मीन्स बाय यूजिंग दिस, इसको यूज़ करने से मेंटल स्ट्रेटजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग गेट्स एबनॉर्मल देन ही विल टेक आउटपुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉट इन डिक्रीजिंग वे। मतलब कि अगर कुछ ऐसे गुड्स का आप सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो मानसिक संतुलन है वो ख़राब हो गया और अपने आउटपुट जो आप ले रहे हो उसकी जो मात्रा है वो बढ़ाते जा रहे हो ना कि कम करते जा रहे हो, तो इस कंडीशन में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इस मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ड्रग्स हो गए, हीरोइंस हो गई, तो इन सब चीज़ का अगर आप सेवन कर रहे हो तो इन सब चीज़ों पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। Next is on collection of rare good coin and ticket, means as the coins and tickets which is collected by a person, likewise the quantity of coins get increases। मतलब कि अगर जैसे जैसे कोई एक पर्सन कॉइन्स या फिर टिकट्स को कलेक्ट करता है तो उसके पास उस कॉइन्स और टिकट की क्वांटिटी जो रहेगी, संख्या जो रहेगी वो बढ़ जाएगी, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल वो भी बढ़ जाएगा। तो देन इट्स सेटिस्फेक्शन लेवल विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग नॉट इन डिक्रीजिंग वे। वो कम नहीं होगा, अगर आपके पास कॉइन्स और टिकट्स बढ़ रहे हैं तो आपको जो उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस यहाँ पे रियल नहीं माना जा सकता क्योंकि ये एक्सेप्शंस कहता है कि यहाँ पे घटेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इन केस में रेयर गुड्स कॉइन एंड टिकट्स पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट इज़ फॉर मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन का मतलब हो गया कंजूस व्यक्ति। ये लॉ एक कंजूस व्यक्ति पर अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में, कम अवधि में मनी जो रहेगा, पैसा जो रहेगा वो इंक्रीजेस देन यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर पैसा बढ़ रहा है तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, यूटिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इन लंबे समय में, लॉन्ग रन में यूटिलिटी जो रहेगी वो कम हो जाएगी, तो ये एक्सेप्शंस यहाँ पे भी रियल नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज स्वीट सॉन्ग्स, गुड पोएम्स एंड गुड लिटरेचर। बाई डूइंग दिस थिंग्स आवर इंटरेस्ट डज नॉट डिक्लाइंस बट द फाइन चार्जेस। मतलब कि ये सब करने से हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमारा जो टाइम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। सपोज अ सॉन्ग बिकम्स हिट्स, मान सपोज कर लो जो कोई एक गाना है वो हिट हो गया, देन इट इज़ प्लेड एट एवरीवेयर, वो हर जगह बजाया जाएगा, वो बार बार सुना जाएगा लोगों के द्वारा। तो हम एक समय आ जाएगा कि हम उससे थक जाएंगे सुनते सुनते, उसी पोएम को, उसी सॉन्ग को, उसी लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते थक जाएंगे। तो उससे जो हमको यूटिलिटी मिलेगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और धीरे धीरे लो रेट पे उसकी यूटिलिटी हमको वहाँ से मिलने लगेगी। तो ये एक्सेप्शंस हमें वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता। सो दिस एक्सेप्शन इज़ नॉट रियल। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब होता है लाइक वाइज इन एनी स्टेट्स क्वांटिटी ऑफ टेलीफोन इंक्रीजेस। सपोज कर लीजिए किसी स्टेट में क्वांटिटी ऑफ टेलीफोन्स जो है वो इंक्रीज हो गई, इट्स कस्टमर, टेलीफोन्स की जो कस्टमर्स है वो इंक्रीज हो गए, और ऑल्सो इंक्रीजेस, सो दिस एक्सेप्शन इज नॉट रियल। अगर किसी स्टेट में टेलीफोन्स की जो क्वांटिटी है, टेलीफोन्स की जो संख्या है वो अगर बढ़ जाती है तो उसके कस्टमर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये एक्सेप्शंस एक तरीके से यहाँ भी रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक कस्टमर हैज़ वन लैंडलाइन या वन लैंडलाइन फ़ोन and after some time he buys the second landline, then he or she will receive utility in decreasing order. So these are the imaginary, not real, right? Next comes the importance of law of diminishing marginal utility. What are the importance of the diminishing marginal utility law? अच्छा, अब इस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम क्या क्या कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सैटिसिटी और गॉसेंस फर्स्ट लॉ कह सकते हैं इस मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग्स के लॉ को।
फर्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस, अगर हम कंजम्पशंस के तौर पे इसका इंपॉर्टेंस देखना चाहें, इंपॉर्टेंस इन द कंजम्पशंस. सो as the quantity of the stock increases, then the consumer will receive less utility at every next unit. But after some time, okay, so if demand is maintained, then changes will be necessary to do regularly to build up the interest. So this law is much applicable in the area of consumptions. As the quantity of a stock increases, जैसे जैसे किसी स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ती है, then the consumer will receive less utility, उसके उपभोक्ता को कम उपयोगिता प्राप्त होगी हर एक सिंगल यूनिट से. लेकिन बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, तो अगर डिमांड जो है वो मेंटेन रहे, उसी प्रकार से होती रहे, तो उसमें परिवर्तन करना ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो सकता है उस इंटरेस्ट को लगातार बनाए रखने के लिए जो कि कंज्यूमर के अंदर उत्पन्न हुआ है. तो ये लॉ इज़ मच एप्लीकेबल इन द एरिया ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन के एरिया में ये लॉ काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाता है. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. हमने लॉ ऑफ डिमांड का एक चैप्टर हमने पीछे पढ़ा हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. मतलब कि अगर कॉस्ट बढ़ती है, इफ़ द कॉस्ट इंक्रीजेस, तो उसका जो कंजम्पशंस रहेगा वो घट जाएगा, कम हो जाएगा. और अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो उसका कंजम्पशंस जो रहेगा वो बढ़ जाएगा. इफ़ एट एनी कंज्यूमर, किसी भी यूज़र एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर को हैव कलेक्टेड लार्ज स्टॉक ऑफ एनी सिंगल प्रोडक्ट, उसने खूब ढेर सारे स्टॉक्स को इकट्ठा कर लिया किसी एक सिंगल प्रोडक्ट्स के, तो उसकी जो यूटिलिटी रहेगी वो घटती जाएगी. सो ही विल डू परचेजिंग एट हाई एट लेस प्राइस. मतलब कि अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, अगर उस किसी कंज्यूमर के पास ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया है, तो उसकी जो यूटिलिटी रहेगी वो कम होती जाएगी. तो वो क्या करेगा, तो वो परचेजिंग लेस प्राइस पे करने लगेगा, वो कम दाम पे उसको बेचने लगेगा, कम दाम पे उसे खरीदने लगेगा. इस प्रकार का मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी. यहाँ पे ये लॉ अप्लाई इंपॉर्टेंस हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एक छोटे तौर पे आपको समझाना चाहे तो व्हेन एनी कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, अगर कोई भी कंज्यूमर एक सिंगल प्रोडक्ट पे अपनी इनकम को खर्च करता है, देन ही विल रिसीव लेस यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, एंड व्हेन ही रीच एट द लास्ट unit, then utility becomes 1 or 2 unit, but spend money on the second quantity at the place where marginal utility becomes equal, then at that point he will receive the maximum satisfaction. Means कोई भी कंज्यूमर अगर अपनी इनकम को एक सिंगल प्रोडक्ट पे खर्च करता है तो उसको उससे लेस यूटिलिटी मिलेगी, ही विल रिसीव इट्स लेस यूटिलिटी. उसकी अगर एक यूनिट को उसके कंज्यूम करेगा तो उससे उसको लेस यूटिलिटी मिलेगी, और जैसे जैसे वो उस कंजम्पशन के लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, उसको वहाँ पे 1 या 2 यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा तो उसको वहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी मिलने की चांसेस रह जाती हैं. लेकिन वो जो मनी स्पेंड कर रहा है दूसरे कमोडिटी पे, वो वहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी. देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल रिसीव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस. तो ये था बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी. इसको हम आगे आगे चल के लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को आगे चल के डिस्कस करेंगे. बेसिक फंडा इसका यही कि द यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शंस ब्रिंग्स द सेम इंक्रीमेंट्स ऑफ यूटिलिटी. This is the basic definitions of law of equi marginal utility. Next comes importance in consumer surplus, which means when any consumer is ready to pay rupees 15 on a 10 rupees pen, right? कोई अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपये है, अगर कोई कंज्यूमर उसके 15 रुपये देने को तैयार है, देन द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर सरप्लस. जो डिफरेंस रहेगा 5 रुपये का, वो कंज्यूमर सरप्लस के तौर पे देखा जाएगा. तो उसकी सेविंग कितनी हो सकती है, देन सेविंग इज डन ऑफ ₹5. एंड ऑन सेकेंड पेन, अगर वो दूसरे पेन को खर्च कर लेना चाहता है तो उस पर वो 12 रुपये देने को तैयार है किसी एक 10 रुपये के पेन पे, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, यहाँ पे 2 रुपये हो गया. इसी तरीके से ऑन 4th यूनिट नंबर ऑफ सेविंग्स विल बी इंक्रीज. सो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, देन इट रिफ्यूज टू टेक द पेन. जब आगे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी तो वो पेन को लेने से मना कर देगा. तो यहाँ पे कंज्यूमर के सरप्लस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, इंपॉर्टेंस इन कंज्यूमर सरप्लस. Next is importance in taxation. Means when the finance minister of any country try to impose any type of tax, तो वो किस प्रकार से टैक्स लगेगी. तो हाई इनकम के जो लोग होंगे उस पर हाई लेवल ऑफ टैक्स लगेगा, मीडियम लेवल के जो इनकम के लोग होंगे उस पर लो लेवल ऑफ टैक्स लगेगा या मीडियम लेवल ऑफ टैक्स लगेगा, और जो लो इनकम के लोग होंगे उस पर जनरल लेवल ऑफ टैक्स लगेगा, जो कि सामान्य रहता है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत रहेगा.
So government also uses this policy to minimize the inequality of income and wealth, because likewise the inequality of income gets decreases, then inequality of decreases, then the development of country will increase. So inequality creates hindrance in a country. Next is importance in determinations of price of goods. Means the product having the high supply will have the less cost, and the product will having the less supply having the high demand, the cost of product will automatically gets increased. So at that time of doing the price determination, producer lowers the cost of the higher supply of goods. Means किसी भी प्रोड्यूसर जो रहेगा अगर इस फंडा को अपनाए तो उसी समय पे वो अपना प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट करेगा जब लोअर्स द कॉस्ट ऑफ हायर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब उसके पास हाई सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगी तो अपने कॉस्ट को कम कर देगा, एंड उसकी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो उस समय में वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंस इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। सो अल्टीमेटली द लॉ इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। तो ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का चैप्टर। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट या प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको उसका आंसर्स इन अ रिटन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सो दिस इज़ द फुल वीडियो रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डूज लाइक दिस video and subscribe my channel. Thank you.